Hello, everybody. So, we will today try to cover some important articles which were published in the June magazine, and I'm using the Next IS magazine. So, it is freely available on their website. So, if you want, you can reach it out. And let's start with the topic. So, the topic is inclusive transformation. So now, first of all, what is inclusive transformation? So inclusive transformation means a development process where the benefits of economic growth and welfare policies reach all sections of society. Okay, so the sorry, yeah, so wait, I'll highlight it also. Yeah, so is it visible? No, it is not. Now it must be visible, right? Okay. So, what is inclusive transformation? So, inclusive transformation means a development process where the benefits of economic growth reaches to all the sections of society, like especially the poor, the marginalized and the vulnerable sections. ठीक है, सो इंक्लूसिव मतलब कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, सो वो हर सेक्शंस तक पहुंचेगा. ठीक है, और मेनली इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है कि जो पुअर है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, उन तक वो डेवलपमेंट सारा पहुंचना चाहिए. ठीक है, सो another para. It goes beyond income support. How? By improving access to healthcare, education, nutrition, housing, water, livelihoods and financial systems. ठीक है, सो सिर्फ इनकम सपोर्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर का एक्सेस भी सुधरेगा. एजुकेशन access to education will improve nutrition, housing, water, livelihoods, financial systems, because in this era now only the food, the housing and roti kapda makan, ठीक है, it is not sufficient. We also need access to healthcare. It is now an important part of basic essentials. We also need quality education. We are entitled to clean water. ठीक है, and also livelihood and financial systems. ठीक है. Now another, this approach aligns with the constitutional vision under Article 38, which was social justice and welfare. ठीक है, social justice मतलब सब socially justice provide करना, welfare. आर्टिकल 39, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो भी इससे अलाइन करता है. देन राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस. ठीक है, देन आर्टिकल 46 विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस. ठीक है, फॉर श्योर. एंड आर्टिकल 47 विच इज़ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ. सो ये जितना भी ये जो इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये सारे आर्टिकल से अलाइन करता है. ओके, नाउ व्हाट आर बेसिक सर्विसेज. ठीक है, उसे कैसे द गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग. सो वाटर एक्सेस, फर्स्ट वी विल लुक इनटू वाटर एक्सेस, देन सैनिटेशन, देन क्लीन कुकिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोशल इंक्लूजन एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एक्सेस कैसे इम्प्रूव हुआ है. सो अंडर जल जीवन मिशन, रूरल tap water coverage increased from 3.2 like approx 3.3 crore households to 15.9 crore households in May 2026, which is 81.9% of rural households. ठीक है, सो 2019 में सिर्फ 3 करोड़, वी आर गोइंग फॉर अप्रॉक्स फिगर्स. ठीक है, 2019 में सिर्फ 3 करोड़ हाउस तक वाटर एक्सेस था, मतलब रूरल जो टैप वाटर था उनके तक उतना ही पहुंचता था. लेकिन इन द मे 2026 इट हैज़ बिन इंक्रीज टू कवरिंग 15.9, like fifth approx 16 crore households is now receiving the rural tap water under which mission, under Jal Jeevan Mission. ठीक है, now
more than 2.77 lakh villages achieved full tap water coverage, which is improving health and reducing women's burden of water collection. Because mainly rural areas में क्या होता था in the ancient times also and present time में भी जो rural areas है उसमें women's were burdened for the water collection. So now as the water is the tap water is reaching to the households, the women are now like the burden of women's to collect water is reduced. ठीक है, so इतने villages 2.77 lakh villages full tap water coverage उनको मिल चुका है. So that is also a point to be noted. ठीक है, सो ये था वाटर एक्सेस. देन वी हैव सैनिटेशन एक्सपांशन. सो अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल सैनिटेशन कवरेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 39%. 2014 में 39% था कवरेज क्या रूरल सैनिटेशन का. ठीक है, रूरल सैनिटेशन का कवरेज 39% था 2014 में, और 2019 में द डेटा इज सेइंग दैट इट हैज़ रीच टू 100%. ठीक है, मोर देन 12.11 crore toilets were built, and by March 2026 over 5 lakh villages has achieved the ODF plus status. ठीक है, ये एक स्टेटस है रिस्पेक्टिव टू द सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का. सो उससे ये दिखाता है ये डेटा कि सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेंथन हुआ है. देन द क्लीन कुकिंग एनर्जी थ्रू प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ओवर 10.57 crore LPG connections were provided. ठीक है, इतना 10.6 crore we can remember the LPG connections were provided, and in the 2014 it was 14.6 crore people were receiving the LPG connections. But now in 2026 it has been rose to 33.39 crore. ठीक है, so इतने लोगों के पास now the LPG connections are available. ठीक है, which has reduced indoor pollution. ठीक है, and improving women's health obviously. ठीक है, now electrification through Saubhagya and related initiatives universal household electrification was achieved. Average rural electricity supply increased from 12.5 hours a day. 2014 में सिर्फ ये जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का जो था वो 12.5 आवर्स था, लेकिन अब वो इन 2025 लाइक पिछले साल का डेटा है, इट हैज़ बिन रोज टू 22.6 आवर्स पर डे. ठीक है, नाउ सोलर इंक्लूजन वो भी हुआ है अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ठीक है, 36.8 लाख हाउस होल्ड्स बेनिफिटेड थ्रू रूफटॉप सोलर. ठीक है, reducing electricity expenditure and linking welfare with clean energy transition. Okay, housing security under Pradhan Mantri Awas Yojana. This all the schemes are very very important because उन्होंने इतना success भी achieve किया है, so that is very important. So we have to make a note of the schemes. ठीक है, so housing में प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है, इतने लाइक अर्बन हाउसेस बिल्ट हुए हैं एंड इतने रूरल हाउसेस रूरल ज़्यादा वो है एज कम्पेयर टू अर्बन इफ द क्वेश्चन आस्क समटाइम्स. या नाउ अराउंड 96% अर्बन एंड 75% रूरल हाउसेस वर रजिस्टर्ड इन विमेंस नेम्स स्ट्रेंथनिंग एसेट ओनरशिप. ठीक है, इससे क्या दिखाता है कि वेमेन को भी अब विमेन्स ऑल्सो नाउ ओन्स दी एसेट. सो ये इसके अंदर ये भी इम्प्रूव हुआ है. So these were the basic services. The government says that the water access, sanitation expansion, clean cooking energy and electrification and solar inclusion with housing security. These are all the basic services, and through different schemes like with respect to every basic service, the basic services goal has been achieved as per the data. Okay, now deepening the human capital. So health care security. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जब एक इंसान को ह्यूमन को हाउ कैन वी कन्वर्ट अ ह्यूमन इनटू कैपिटल? सो व्हेन द ह्यूमन इज प्रोवाइडेड विथ क्वालिटी एजुकेशन, with good healthcare, the infrastructure, okay, with the basic services. ठीक है, क्योंकि
इंसान तभी एक कैपिटल बन सकता है. कैपिटल इज समथिंग विच कैन हेल्प यू गेन गुड इन द फ्यूचर. ठीक है, हेल्प यू जनरेट समथिंग इन द फ्यूचर. सो अगर ह्यूमन को अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज, बिकॉज अगर इंसान बीमार होगा तो ही और शी वुड नॉट बी एबल टू लर्न इन अ बेटर मैनर. सो हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी एजुकेशन ज़रूरी है. देन दी बेसिक सर्विसेज जो हमने ऊपर देखा. ठीक है, जब तक बेसिक सर्विसेज किसी इंसान की फुलफिल नहीं है, ठीक है, जब तक the human is worried about the basic services, like how to fulfill my basic services like housing, the food, the healthcare, tab tak till then he or she will not be able to think in a broad manner, in a manner in which he or she can contribute to the nation. ठीक है, so अगर किसी इंसान को कैपिटल बनाना है तो वी हैव टू इंश्योर कि बेसिक सर्विसेज फुलफिल्ड हो, तभी वो आगे का कुछ सोच पाएगा कि ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा भी कुछ है, आई कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप. ठीक है, आई कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो उससे क्या होगा, उसका जो भी कवरेज है वो ज़्यादा ब्रॉड होगा. सो हेल्थ केयर सिक्योरिटी अंडर आयुष्मान भारत. ठीक है, PM जय, ओवर 43.93 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स वर इशूड. यस, ये तो इशू हुए हैं. प्रोवाइडिंग एश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली. ठीक है, पर फैमिली 5 लाख का कवरेज देते हैं आयुष्मान कार्ड से. सो हॉस्पिटल एडमिशन्स भी रोज़ हुए हैं इससे, जो 2019 में सिर्फ 29 लाइक अराउंड 30 लाख थे, अब वो 12 करोड़ हो गए, लाइक लाख से सीधा करोड़. So yes, this is also a successful scheme as per data. Yeah. Then primary health care. ठीक है, more than 1.85 lakh Ayushman Arogya Mandirs facilitated over 540 crore patient visits, improving healthcare access at the grassroots. ठीक है, grassroots level पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी विकसित हुए हैं, जिससे लोगों को इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर हुआ है एट द ग्रास रूट लेवल. ठीक है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. सो 88.33 करोड़ आभा अकाउंट्स. ठीक है, ये तो इसमें भी पूछा था किसी एग्जाम में, UPSC या GPSC में. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है, उसके अंदर वी हैव टू लाइक आभा अकाउंट्स क्रिएट होते हैं. और व्हाट डज इट प्रोवाइड, ये डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स है. मतलब कि आपको फिर वो फाइल्स वगैरह लेके यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, डिजिटली सब कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे. सो उसके लिए आभा अकाउंट्स ओपन होते हैं अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है, फिर आता है मैटरनल हेल्थ. सो थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ओवर 7 करोड़ एंटीनेटल चेकअप्स वर कंडक्टेड, जिससे कि ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो रिड्यूस हुआ है. ठीक है, पहले 130 डेथ्स होते थे पर 1 लाख लाइव बर्थ्स पे, अब 88 हुआ है. वी नीड टू इम्प्रूव बट स्टिल इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड. ठीक है, देन दी इम्यूनाइजेशन. ठीक है, अंडर मिशन इंद्रधनुष. ये याद रखना है बिकॉज इकोनॉमी में एक दूसरा है इंद्रधनुष करके, वो अलग है. ठीक है, और ये मिशन इंद्रधनुष है जिसमें कि 5.5 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.4 करोड़ प्रेग्नेंट मूवमेंट को इम्यूनाइज किया गया था है. ठीक है, देन द फूड सिक्योरिटी. तो वो किससे, थ्रू PM. ठीक है, PMG के ओवर 81 करोड़ बेनिफिशरीज कंटिन्यू रिसीविंग फ्री फूड ग्रेन्स. अब इतने लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं. ठीक है, अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड ओवर 2.7 बिलियन पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, सो एक क्वेश्चन था किसी एग्ज़ाम में कि ये जो भी फ्री फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो उसका गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं होता है, लाइक ऐसा कुछ, ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन था. सो नहीं, गवर्नमेंट पे वो बर्डन होता है फाइनेंशियली if we look into that, but that burden is transferred to the taxpayers. ठीक है, सो ये जो जितने भी ये जो मुफ्त अनाज वितरण होते हैं वो हम जो टैक्स पे करते हैं
उससे फैसिलिटेट होता है और उससे जितने भी नीडी पीपल है जिनको जो फूड ग्रेन्स जिनको मिलना चाहिए फ्रीली वो उनको मिलता है. सो ठीक है, ये याद रखना. देन द न्यूट्रिशन चैलेंज. डिस्पाइट फूड सिक्योरिटी एक्सपेंशन, इंडिया स्टिल फेसेस स्टंटिंग, एनीमिया एंड अंडर न्यूट्रिशन. ठीक है, इतना फूड सिक्योरिटी एक्सपेंशन हुआ है फिर भी ये सारे जो इश्यूज है वो अभी भी है, चल रहा है, which shows that the nutritional security remains weaker than the cereal based food security. इसका यही मतलब है कि फूड सिक्योरिटी तो हमने शायद अचीव कर लिया है लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जैसा एंगल अभी भी अचीव करना बाकी है. ठीक है. नाउ द एजुकेशन एक्सेस अंडर समग्र शिक्षा अभियान. ठीक है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंक्लूजन हो गया, क्वालिटी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है. मोर देन 1.5 lakh ICT initiatives were taken and the 25,000 skilled schools were also introduced. ठीक है. नाउ द गर्ल्स एजुकेशन. जो फीमेल प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स था पहले 4.6% था इन 2013-14, अब वो रिड्यूस हुआ है टू 0.3% इन द 2024-25 ईयर. ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड, लाइक ये डेटा हम याद रख सकते हैं फॉर श्योर कि प्राइमरी स्कूल के ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा थे. लाइक 4.6% इज़ अ वेरी हाई ड्रॉप आउट रेट. ठीक है, और अब वो 0.3 हो गया है, मतलब कि अब सिर्फ 0.3% फीमेल्स आर ओनली ड्रॉपिंग आउट. सो दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव. लाइक ठीक है. देन गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट. सो अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द सेक्स रेशियो इम्प्रूव फ्रॉम 943 to 1020, while girls secondary enrollment rose to 80.2%. सो ये सारा डेटा वाला है. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस सिलेक्टिव डेटा. जैसे गर्ल्स एजुकेशन का वी कैन रिमेंबर इट, इट विल बी यूजफुल इन द मेन्स ऑल्सो. एंड देन दिस न्यूट्रिशन चैलेंज वाला हम कह सकते हैं कि लाइक वी माइट हैव अचीव द फूड सिक्योरिटी बट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चैलेंज स्टिल रिमेन्स. सो ये हम याद रख सकते हैं. फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ अ गुड साइन. ठीक है, सो ये आर्टिकल ही उस पर है कि कैसे इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. नाउ वी विल लुक इनटू द लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टॉपिक. ओके, सो लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी हम वी विल लुक इनटू इट. सो दी वुमेन लेड डेवलपमेंट. ठीक है, अंडर डे NRLM वुमेन लिंक्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंक्रीज हुआ है 2.37 करोड़ से 10 करोड़. लाइक नाउ 10 करोड़ वुमेन आर नाउ लिंक्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो गुड वन. ठीक है. स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ओवर 1.64 करोड़ यूथ वर ट्रेन्ड, while DDU-GKY trained 17.7 lakh candidates. ठीक है, so this is also data to be noted. स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है कौशल विकास योजना के अंतर्गत. ठीक है, 1.7 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया अप्रॉक्स. नाउ द एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी. सो वेज एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली, जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी राइज हुआ है 48 से 58%, जिससे ये दिखता है कि रूरल लाइवलीहुड रेजिलियंस बढ़ रहा है. नाउ द इनफॉर्मल लेबर इंक्लूजन. जो ये ई श्रम पोर्टल था उसने लाइक उसमें रजिस्टर्ड कितने करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड हुए, 31.64 करोड़ का वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है. एक्सपैंडिंग लेबर विजिबिलिटी. ठीक है, एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि इनफॉर्मल लेबर का भी इंक्लूजन हुआ है, अब वो भी इम्प्रूव हुआ है उनका. ठीक है. नाउ यस, स्ट्रीट वेंडर सपोर्ट थ्रू PM Swanidhi. Street vendors received working capital loans, improving livelihood continuity. So PM Swanidhi के अंतर्गत
स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको कैपिटल लोन्स रिसीव हुए हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है. द ट्रेडिशनल स्किल्स प्रोटेक्शन अंडर PM विश्वकर्मा, आर्टिजन्स रिसीव्ड स्किल सपोर्ट, टूल किट्स एंड फॉर्मल रिकॉग्निशन. विश्वकर्मा, ठीक है, आर्टिजन्स से लिंक्ड है ये स्कीम, ठीक है. विश्वकर्मा हमारे में लाइक अगर देखा जाए तो ही इज़ द like he is recognized as someone who is associated with the construction of houses या कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है तो विश्वकर्मा का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिकग्निशन होता है, ठीक है. सो आर्टिजन से लिंक्ड है ये स्कीम. सो उनको भी स्किल सपोर्ट रिसीव हुआ है, टूल किट्स भी हुए और फॉर्मली दे हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड. Then these interventions reflect a policy shift from welfare dependence to productive empowerment. अब सिर्फ वो लोग ये दिखाता है कि वेलफेयर पे डिपेंडेंट नहीं है वो. Now it has been seen a policy shift from welfare dependence to productive empowerment, ठीक है. So the people are now being empowered. अभी डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन में तो PM जनधन योजना, ठीक है, इंक्रीज हुए हैं बेनिफिशियरी 17.9 करोड़ से लेके 58.16 करोड़. एंड द डिपॉजिट हैज एक्सीडेड 3 लाख करोड़, जिससे दिखता है कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इकोसिस्टम स्ट्रेंथन हुआ है. एंटरप्रेन्योरशिप क्रेडिट अंडर PM मुद्रा, ठीक है, लोन्स दिए जाते थे, मुद्रा लोन्स. मोर देन 57 करोड़ लोन्स हैव बीन सैंक्शन और 66% तो वुमेन में ही गए. वेरी गुड लाइक इम्प्रूवमेंट. डिजिटल पेमेंट्स, UPI हर जगह है अब तो, ठीक है. ओवर 9 कंट्रीज तक UPI वी हैव बीन एक्सपांडेड. सो या इट नाउ प्रोसेसेस ओवर 2100 करोड़ मंथली ट्रांजेक्शन्स, improving financial accessibility and reducing transaction cost. Connectivity, BharatNet has connected more than 2.19 lakh ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया है BharatNet ने, ठीक है, जिससे कि डिजिटल इंक्लूजन एक्सपांड हुआ है और वेलफेयर सर्विसेज को एक्सेस, इम्प्रूविंग एक्सेस टू वेलफेयर सर्विसेज. टारगेटेड इंक्लूजन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़, ठीक है. PVTG डेवलपमेंट अंडर PM जनमन, ठीक है. इसमें 75 जो PVTGs है उसका कवरेज है. 2.66 लाख हाउसेस बिल्ट हुए हैं, इतने रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं और 750 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी डिलीवर हुए हैं जिस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, ठीक है. देन वी हैव कन्वर्जेंट ट्राइबल सेचुरेशन. सो अंडर PM जुगा विच इज़ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 12.89 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं. 2400 किलोमीटर रोड्स बने हैं. वाटर और इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो सेंक्शन किए गए हैं विच रिफ्लेक्ट्स अ कन्वर्जन बेस्ड ट्राइबल डेवलपमेंट मॉडल्स, ठीक है. फॉरेस्ट लाइवलीहुड्स का अगर देखा जाए तो अंडर PMJVM और 11461 वन धन विकास केंद्र सेंक्शन हुआ है, जिससे कि ट्राइबल फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स जो होंगे वो स्ट्रेंथन होंगे. एजुकेशन इंक्लूजन देखा जाए तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है वो 129 से बढ़ के 499 हो गए, जिससे कि 1.54 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स आर नाउ स्टडिंग इन दिस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स. ओके. सो लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी है, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटी, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी. रीजनल डिस्पैरिटी रिमेन्स हाई अक्रॉस स्टेट्स एंड ट्राइबल रीजन्स, ठीक है. सर्विस क्वालिटी गैप्स अभी भी है हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन में, दैट वी नीड टू ओवरकम. फिर न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी रिमेन सीरियस डिस्पाइट फूड ग्रेन एक्सेस तो है सबको अब, लेकिन न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी इज स्टिल अ कंसर्न टू बी एड्रेस्ड. इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वल्नरेबिलिटी कंटिन्यूज टू डोमिनेट लेबर मार्केट्स, अभी भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है.
डिजिटल डिवाइड परसिस्ट इन रिमोट और ट्राइबल एरियाज में अभी भी डिजिटल डिवाइड है. सोशल एक्सक्लूजन स्टिल अफेक्ट्स माइग्रेंट्स, elderly persons, homeless populations and persons with disabilities. Fiscal sustainability remains a challenge as a welfare commitments expand. ठीक है. Now what is the way forward? Challenges देख लिए हमने. अभी way forward क्या होगा? We need to strengthen last mile delivery. तभी inclusive transformation ensure होगा. Improve beneficiary identification. Beneficiary जो है उसका identification बहुत ज़रूरी है. किस तक पहुंच रहा है, जिस तक पहुंचना चाहिए उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, दैट इज़ टू बी आइडेंटिफाइड, दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. ठीक है. सर्विस का क्वालिटी कैसा है, और जो भी ग्रीवियंस का रिड्रेजल है वो भी एक मैकेनिज्म वी नीड टू डेवलप. देन आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, ये क्या है? इट इज़ द शिफ्ट फोकस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से मेजरेबल वेलफेयर आउटकम्स का जो शिफ्ट है माइंडसेट का, वो हमें देखना है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसका वेलफेयर आउटकम क्या हो रहा है, दैट वी नीड टू मेजर. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर पे स्पेंड करना चाहिए, एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन और स्केलिंग पे. न्यूट्रिशन सेंट्रिक पॉलिसी होना चाहिए, कैलोरी सिक्योरिटी से लेके डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ कैलोरी सिक्योरिटी सब कुछ नहीं है, that you are receiving the food grains, but nutrition centric policy is also required. Digital expansion, improved digital literacy and connectivity in under reserved regions. ठीक है. then cooperative federalism, ठीक है, स्टेट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाए. नाउ दी कंक्लूजन, India's inclusive transformation reflects a structural transition from welfare distribution to human development-led empowerment. The expansion of basic capabilities, human capital, livelihood security, financial inclusion और tribal development वो reduce हुआ है. ये सब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस बढ़ा है. The real significance lies in making inclusive transformation the bridge between economic growth and social justice, ensuring that development is not only faster but also fairer, more dignified and more sustainable. So that will lead to more inclusive transformation. ठीक है. सो हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं एक्सक्लूजन को? सो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन को ओवरकम करना है, जैसे कि ऐसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है टू एंश्योर इक्वल वोटिंग राइट्स, ताकि everyone can participate and they can elect their representatives. So social exclusion है. ठीक है. सो एक्सक्लूजन बहुत सारे टाइप्स के, जैसे पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो गया, सोशल एक्सक्लूजन हो गया, कल्चरल एक्सक्लूजन हो गया, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो गया. सो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन को हम कैसे ओवरकम करेंगे? सो सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, जो कि है. ठीक है. सोशल एक्सक्लूजन को कैसे हम ओवरकम करेंगे? वी शुड इम्प्रूव एक्सेस टू हाउसिंग एंड नेबरहुड्स फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए हमें ये एक्सेस इम्प्रूव करना है. ठीक है. कल्चरल एक्सक्लूजन को कैसे? फ्रॉम इंक्लूसिविटी इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. ठीक है. एंड हाउ वी विल प्रमोट इकोनॉमिक, लाइक हाउ वी विल रिड्यूस इकोनॉमिकली. सो कैसे इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को एड्रेस करेंगे? to promote fair wages and opportunities to reduce economic disparities. So this was it, the article we have covered holistically, और इसमें सारा data ही था. So we need to like remember and make a note of it. This can be a important article for the mains and even for the prelims. So that was it, and we will meet in the next video with another important article. Till then, stay safe and keep learning. Thank you all.